آداب عرصے میں ہوں صفی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ آزادی کے بعد سے مسلمانوں کے مسائل نظر انداز کیے گئے، جبکہ آئین میں سب کو برابر کا موقع دیا گیا۔ بلرام پور میں صدر مجلس کا خطاب۔ ریاست میں ایک بار پھر یگنم کے انعقاد کا امکان، کیرالہ سے 5000 پنڈتوں کو مدعو کرنے کا منصوبہ۔ گاڑیوں کے نئے رجسٹریشن کے ساتھ ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹس کی فراہمی، تلنگانہ حکومت کا منصوبہ۔ آندھرا کو خصوصی درجے کا اعلان نہ کرنے پر آندھرا کانگریس کا احتجاجی پروگرام، ریل مسافرین میں پیمپلیٹس کی تقسیم۔ اور سنگاریڈی میں آوارہ کتوں کی کثرت، حملوں میں 7 بچے زخمی، بلدیہ کا محکمہ خواب غفلت کا شکار۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ ملک کے آئین میں تمام طبقات کو برابر کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ بہار کے حلقہ اسمبلی بلرام پور میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اسد اویسی نے سابق حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد سے مسلمان اور دلت پسماندگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کے مسائل کو سابق حکومتوں نے مکمل نظر انداز کر دیا ہے۔ انہوں نے مجلس کو پسماندہ طبقات کی نمائندگی کرنے والی جماعت قرار دیا ہے۔ انہوں نے مجلسی امیدوار کو کامیاب بناتے ہوئے بہار اسمبلی میں پسماندہ طبقات کی نمائندگی کو یقینی بنانے کی عوام سے اپیل کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی آزادی کے بعد سے آج تک فرقہ پرست طاقتوں کو نہیں دیا، اور یہ کون فرقہ پرست طاقتیں ہیں؟ یہ وہی فرقہ پرست طاقتیں ہیں جنہوں نے مہاتما گاندھی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ یہ فرقہ پرستی کا زہر اس وقت سے شروع ہے۔ ہندوستان میں سب سے بڑا سب سے پہلا اگر کوئی ٹیررسٹ ایکشن ہوا، دہشت گردی کا سب سے پہلا کوئی واقعہ ہمارے ملک میں ہوا تو وہ ہے مہاتما گاندھی کا قتل۔ اور قتل کرنے والے فرقہ پرست تھے، قتل کرنے والوں میں زہر تھا فرقہ پرستی کا۔ اور اس زمانے سے لے کر اب تک جن حضرات نے، جن لوگوں نے، جس تنظیم نے ہندوستان کے مہاتما گاندھی کا قتل کیا، وہ زہر آج تک ہمارے ملک میں دور رہا۔ اور وہی زہر کی وجہ سے، وہی فرقہ پرستی کے زہر سے مسلم اقلیت سے انصاف نہیں ہوا۔ آزادی کے بعد سے آپ دیکھ لیے قریب 70 سال ہمارے ملک کو آزاد ہو کر ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ بات کو سوچ لیجئے کہ آخر اسدالدین اویسی یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ جو ایک الیکشن کا جلسہ ہے، یہ اویسی آپ کے درمیان یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو فرقہ پرستی پچھلے 70 سال سے ہمارے ملک میں زندہ ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ مختلف پارٹیاں حکومت کرتی ہیں مگر وہ زہر باقی رہتا ہے۔ کبھی کانگریس نے حکومت کیا ہندوستان پر تو فرقہ پرستی کا زہر باقی رہا، تو کبھی ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں ریجنل پارٹیز آئی تو زہر باقی رہا۔ ہندوستان کے دلی میں اقتدار کانگریس سے چھینا گیا، جنتا پارٹی آئی مگر جنتا پارٹی کے دور میں بھی فرقہ پرستی کا زہر تھا۔ جنتا پارٹی کے بعد کانگریس آئی مگر فرقہ پرستی کا زہر باقی رہا۔ کانگریس کے جانے کے بعد یونائیٹڈ فرنٹ کی گورنمنٹ آئی، فرقہ پرستی کا زہر باقی تھا۔ اندرا گاندھی کو مارا گیا، فرقہ پرستی کے زہر کی بنا پر مارا گیا۔ راجیو گاندھی کو مارا گیا، فرقہ پرستی کے زہر کی بنا پر مارا گیا۔ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، فرقہ پرستی کے زہر میں ظالموں نے بابری مسجد کو شہید کیا۔ ہندوستان میں آزادی سے لے کر اب تک جتنے فسادات ہوئے، فساد کرنے والوں کی رگوں میں فرقہ پرستی کا زہر تھا۔ کون نہیں جانتا کہ آسام میں دلی کا وہ فساد جس میں 10-12 ہزار سے زائد معصوم مسلم اقلیت کا قتل عام ہوا؟ کون نہیں جانتا کہ اتر پردیش کا ملیانہ کا فساد
कौन नहीं जानता कि हाशिमपुरा का फसाद, जिस फसाद में हाशिमपुरा से 40 मुसलमानों को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जाती है और नदी के किनारे उनको गोली मारकर उनकी लाशों को फेंक दिया जाता। 28 साल हो गए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों हाशिमपुरा का वाकया होकर, मगर किसी एक भी पुलिस वाले ने सजा नहीं दी। बताइए फिरका परस्ती कितनी हो चुकी है। 28 साल का लंबा अरसा गुजर चुका मगर किसी को सजा नहीं होती। बाबरी मस्जिद को शहीद होकर कितना अरसा गुजर चुका मगर जिन जालिमों ने वही फिरका परस्ती का जहर जिनके रगों में, जिनकी सोच और फिक्र रहे, आज हिंदुस्तान में आजाद फिर रहे, जिनकी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, जिन्होंने मस्जिद गिराते वक्त मिठाइयां बांट कर खुश हो रहे थे, वो हिंदुस्तान के अवाम ने उनका इक़्तिदार नहीं किया। आज वही लोग जिनके सामने आपने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया तो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बन गया। और अफसोस तो ये है कि जिसकी निगाहों के सामने और जिसकी रथ यात्रा की बिना पर हिंदुस्तान में मासूम अवाम का कत्लेआम हुआ, आज उसको ये मोदी की हुकूमत पद्म विभूषण की आवाज से नवाजती। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से इतवार को मुलाकात की। करीब 30 मिनट की इस मुलाकात में वज़ीर आला ने गवर्नर से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक दिसंबर में वज़ीर आला यगनम करने वाले हैं। इससे मुतालिक तमाम तफसीलात से गवर्नर को वाकिफ करवाया। उसके अलावा तेलंगाना की नई आबी पॉलिसी से मुतालिक भी गवर्नर को वाकिफ करवाया गया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब करने का ऐलान किया था। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक मरतबा फिर यगनम करने वाले हैं। ये यगनम 30 और 27 दिसंबर के दरमियान मुनक़द किए जाने का इम्कान है। इस यगनम में केरला से 5000 पंडितों को मदऊ किया जाएगा। मेदक के यरावली देहात के अतराफ इस यगनम के इंतजामात का जायजा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव खुद ले रहे हैं। यगनम में शिरकत के लिए सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला को दावत देने पर भी गौर किया जा रहा है। तेलंगाना तहरीक के दौरान KCR ने तहरीक पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए यह यगनम TRS भवन में मुनक़द किया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर के दिन दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक दिल्ली दौरे के दौरान वो नीति आयोग इजलास में शिरकत करते हुए रियासती रिपोर्ट पेश करेंगे। इम्कान है कि वज़ीर आला दिल्ली दौरे के दौरान मरकजी वज़रा से भी मुलाकात करेंगे। पता चला है कि वज़ीर आला वज़ीर आज़म को भी यगनम में शिरकत के लिए भी दावत दे सकते हैं। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत रियासत में डबल बेडरूम मकानात नहीं बल्कि मॉडल मकानात तामीर करने का मंसूबा रखती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10,000 मकानात की मंजूरी वज़ीर आला खुद अपने पास रख चुके हैं। बाकी मकानात के लिए अरकान असेंबली और वज़रा को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में मुस्तहिक़ अफराद को मकानात कहाँ से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हर असेंबली हल्के से 400 मकानात के हिसाब से तामीर किए जाएंगे तो हर बूथ में सिर्फ एक मकान ही तामीर होगा, जबकि हुकूमत माजी में तामीर किए गए मकानात के बकायाजात की अदायगी भी बाकी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस सिलसिले में वो संजीदगी से काम करते हुए मुस्तहिक़ अफराद में मकानात तकसीम करे। एक असेंबली सेगमेंट को 400 घर बोले तो रियासत में 120 है MLA, 119 को एक ऐड करे तो 120 होते, 120 को 400 से करे तो तकरीबन 50,000 होते। और CM साहब ने 10,000 उनके जेब में रख लिए। हर एक बेघर वाले को घर मंजूरी दे रहे, क्या हर एक को देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता क्या? सिर्फ गांव को एक बनाए तो मॉडल हाउस बन जाते। समझो एक घर में 100 बेघर वाले हैं, 100 को बनाने के वजह 1-2 को बनाए तो क्या होता, मॉडल हाउसिंग बन जाते। भाई देखो, अगर हुकूमत जो 5 लाख से घर बनाना चाहते ये ऐसा रहते, ये मॉडल है, वो मॉडल दिखाने के वास्ते आप घर बना रहे जैसा है। तेलंगाना हुकूमत ने गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स फराहम करने का भी मंसूबा तैयार किया है। इस सिलसिले में महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से रहनुमाना खतूत तैयार कर लिए गए हैं।
इस सिलसिले में कानूनी पेचीदगियों को दूर करने के लिए हुकूमत ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की तजवीज़ को महकमे कानून से रुजू किया है, ताकि महकमे कानून की जानिब से इसको हरी झंडी दिखाए जाने के बाद ये रहनुमाना खतूत जारी किए जा सके। ज़रा के मुताबिक 2 पहियों वाली गाड़ियों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 245 था 250 रुपये की कीमत रखी गई है। इसी तरह 3 पहिए वाली गाड़ियों के लिए 610 रुपये और 4 पहिए वाली गाड़ियों के लिए 649 रुपये कीमत रखी गई है। नए गाड़ियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फराहम करने में हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के साथ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फराहम करना हुकूमत के लिए मुश्किल काम है। दूसरी तरफ नंबर प्लेट बनाने वाले और रेडियम का काम करने वाले और कारोबार करने वालों का कहना है कि जब हुकूमत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फराहम करने में नाकाम हो गई है तो ऐसे में इसका लुजूम आयद करने का फैसला मुनासिब नहीं है। उनका कहना है कि हुकूमत अगर नंबर प्लेट बनाने वालों के साथ काम करे तो उनको रोजगार भी फराहम होगा। जहां तक रजिस्ट्रेशन के नंबर्स के लिए हाई सिक्योरिटी के बजाय अगर आम नंबर प्लेट्स फराहम की जाएं तो उनको भी फायदा होगा। हुकूमत अपनी सहूलत से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फराहम कर सकती है। विजयदशमी के मौके पर तेलंगाना के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी और हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी की जानिब से हवा में फायरिंग की तस्वीर से तनाज़ा खड़ा हो गया है। इन दोनों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आम हो गई है। विजयदशमी के मौके पर हथियारों की पूजा की जाती है। दोनों लीडरों ने इस पूजा के बाद कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए हवा में फायरिंग की। इनकी वीडियोस और तस्वीर ने सोशल मीडिया में हलचल मचा दी। इंदिरा किरण रेड्डी ने जिले आदिलाबाद के निर्मल में अरकान खानदान के साथ विजयदशमी के मौके पर हथियारों की पूजा के बाद मकान के अहाते में रिवॉल्वर से हवा में 2 राउंड फायर किया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इसी दौरान महबूब नगर के रुकन पार्लियामेंट ने जुबली हिल्स में वाक़ई अपने मकान के अहाते में हथियारों की पूजा के वक्त फायरिंग की। उन्होंने खुद की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने वाले इस हथियार से हवा में फायरिंग की। इन दोनों की फायरिंग की तस्वीर और विजुअल्स सोशल मीडिया में आम हो गई और एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। मरकजी हुकूमत ने आंध्रा रियासत को खुसूसी दर्जा ना देने पर बीजेपी के खिलाफ आंध्रा कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम के तहत सिकंदराबाद ता पटना जाने वाली ट्रेन के मुसाफिरीन से आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने मुलाकात करते हुए बीजेपी को वोट ना देने की अपील की है। इस मौके पर आंध्रा कायदीन ने मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए। इस मौके पर रघुवीरा रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि इस ट्रेन के जरिए बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए एक टीम भी रवाना की जा रही है और ट्रेन में मुसाफिरीन में पैम्पलेट्स भी तकसीम किए गए हैं। बादशाह रेलवे पुलिस ने इन कायदीन को हिरासत में ले लिया। हिंदुपुर के रुकन असेंबली और मशहूर अदाकार बालाकृष्णा ने यकीन का इजहार किया है कि आंध्र प्रदेश को मरकजी हुकूमत जल्द ही खुसूसी रियासत का दर्जा देगी। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से इस सिलसिले में एक फैसले से तेलुगु अवाम का फायदा होगा। बालाकृष्णा ने पिस्तान के कैंसर से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क के करीब मुनक़दा तकरीब में हिस्सा लिया। इस तकरीब को पिंक रिबन का नाम दिया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए बालाकृष्णा ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के देहात में मोबाइल एम्बुलेंस भेजकर पिस्तान के कैंसर की स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में खवातीन में बेदारी की जरूरत पर जोर दिया। इस तकरीब में तेलुगु फिल्मों की अदाकारा अंजलि और दीगर अहम शख्सियतों ने भी हिस्सा लिया। रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि वरंगल पार्लिमानी हलके से कांग्रेस के कामयाब होने पर ही मरकज और रियासती हुकूमत की आंख खुलेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम और बीजेपी इत्तेहाद को अवाम से वोट मांगने का हक नहीं है, क्योंकि इन दोनों जमातों ने इख्तिदार में आने के लिए अवाम को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज को बांटकर इख्तिदार हासिल करना चाहती है। ऐसी पार्टी को वोट मांगने का हक ही नहीं है। इधर टीआरएस पार्टी ने भी 1.5 साल से ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो वोट मांग सके।
उन्होंने कहा कि अवाम कांग्रेस को ही कामयाब बनाएंगे। मैंने एक सीट से हमको कांग्रेस नरेंद्र मोदी उतर के हम प्रधानमंत्री बनाएंगे बोल के नहीं, एक सीट जीतने से आई ओपनर होगा। ये वरंगल का बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीत, पूरा देश में जो नाइंसाफ हो रहा, जो डिवाइड होके चला रहे सोसाइटी को बांट के, हम लोग जोड़ने के प्रयास करते, वो तोड़ने के प्रयास कर रहे, उसका रोक लगता। इधर भी मौजूदा स्टेट गवर्नमेंट आई ओपनर होता, जिम्मेदारी से पालन करता, कम से कम फार्मर को देखता, बच्चों को देखता, महिलाओं को देखता, और अनएम्प्लॉयड बेरोजगारों को और मार्टिर्स को अमरवीर अंदर ने చూస్తాడు। तेलुगुदेशम कायद जय प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अवाम की बहबूदी के खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमरावती के संग बुनियाद तकरीब पर दोनों जमातों के कायदीन के रिमार्क्स बाई से अफसोस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टियां चंद्रबाबू नायडू को उनके मकसद से 1 इंच भी नहीं हटा सकती। उन्होंने कहा कि अमरावती को आलमी सतह पर मकबूल करने के लिए चंद्रबाबू नायडू काम कर रहे हैं, तो ये सियासी जमातें गैर जरूरी प्रोपेगेंडा कर रही हैं। उन्होंने दोनों जमातों को मशवरा दिया है कि रियासत को खुसूसी दर्जा देने के लिए पार्लियामेंट में जिद्दोजहद करें। नालसाब गुड्डा संगारेड्डी में आवारा कुत्तों ने 7 छोटे बच्चों पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया है। यह वाकया इतवार की सुबह पेश आया जब मासूम बच्चे अपने घर के करीब खेल रहे थे। कुत्तों ने बच्चों के चेहरों के अलावा जिस्म के दूसरे हिस्सों को जख्मी किया। मुकामी अफराद ने जब बच्चों को बचाने की कोशिश की तो इन कुत्तों ने उन पर भी हमला कर दिया। मुतासिरीन को जब संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया गया तो वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। मजलिसी रुकन बल्दिया नाजिम अज्जू ने दवाखाना पहुंचकर सुपरिंटेंडेंट से बात की, जिस पर एक डॉक्टर दवाखाना पहुंचकर मुतासिरीन को हैदराबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया, लेकिन दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट ने मुतासिरीन का इलाज संगारेड्डी के दवाखाने में ही करने की हिदायत दी। संगारेड्डी का यह सरकारी दवाखाना वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हल्के में आता है, फिर भी हुकूमत ने इस दवाखाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। कम अज कम इस वाक़े के बाद तो महकमे बल्दिया को हरकत में आना चाहिए। अगर आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम नहीं किया गया तो आवाम का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सनत नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ने फतेहनगर, वड्डर बस्ती, IBS नगर में DCP श्रीनिवास रेड्डी की निगरानी में यह मुहिम चलाते हुए 22 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने 42 बाइक्स, 10 ऑटोज और एक कार को भी जब्त कर लिया। इस मुहिम में 230 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया है। DCP श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि इस मुहिम के दौरान हिरासत में लिए गए अफराद में तिलाई चैन छीनकर फरार होने वाले 5 अफराद, माजी में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद, कत्ल की वारदातों में मुलविस 5 अफराद, तवज्जो हटाकर रहजनी के वाक़यात में मुलविस 2 अफराद, एक हिस्ट्री शीटर और दूसरे शामिल हैं। शहर हैदराबाद के केसरा और चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुआ खेलने वाले 16 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने 2 मुकामात पर अचानक धावा करते हुए इन अफराद को हिरासत में लेकर उनके पास से 2 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली। गुज़िश्ता चंद दिनों से इन इलाकों में जुआ खेलने की इतलात मिलने पर यह धावा किया गया। आगापुरे के इलाके चारखंदिल में एक स्क्रैप के गोदाम को आग लगने की वजह से सारा स्टॉक जलकर खाकिस्तान हो गया है। इतवार के दिन यह वाकया करीब 1:30 बजे उस वक्त पेश आया जब गोदाम बंद था। मुकामी अफराद ने गोदाम को आग लगती हुई देखकर उसके मालिक को फोन पर इत्तला दी। शहर के एक फायर ब्रिगेड ने 1 घंटा ताखिर से पहुंचकर आग बुझा दी। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। जिले महबूब नगर की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का वाकया पेश आया। हफ्ते की रात देर गए जिले महबूब नगर के फारूक नगर मंडल के बुरगला इलाके में यह वाकया पेश आया। आग के शोले काफी बुलंद थे, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़े पर 3 फायर इंजन पहुंच गए और आग के शोलों पर काबू पाया।
इस वाक़े में 10 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। पुलिस ने बताया कि इस फैक्ट्री में कीड़े मार दवाएं तैयार की जाती हैं। इस वाक़े में फैक्ट्री की मशीनें जलकर तबाह हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आजादी के बाद से मुसलमानों के मसाइल नजरअंदाज किए गए, जबकि आइन में सबको बराबर का मौका दिया गया। बलरामपुर में सदर मजलिस का खिताब। रियासत में एक बार फिर यज्ञम के इनेकाद का इम्कान। केरला से 5000 पंडितों को मदऊ करने का मंसूबा। गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन के साथ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स की फराहमी। तेलंगाना हुकूमत का मंसूबा। आंध्रा को खुसूसी दर्जे का ऐलान न करने पर आंध्रा कांग्रेस का एहतजाजी प्रोग्राम। रेल मुसाफिरीन में पैम्पलेट्स की तकसीम। और संगारेड्डी में आवारा कुत्तों की कसरत, हमलों में 7 बच्चे जख्मी। बल्दिया का महकमा ख्वाब गफलत का शिकार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।